آدھی رات کو اٹھ کر شکر گزاری کروں گا. کب شکر گزاری کروں گا؟ آدھی رات کو اٹھ کر. کب اٹھ کر کروں گا شکر گزاری؟ آدھی رات کو اٹھ کر. چلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں. اچھا جب سوال پوچھو تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی بڑا ہے یا کوئی اسکالر ہے یا کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے. میں آپ ہی لوگوں کا بچہ ہوں, آپ ہی لوگوں سے سیکھوں گا. آپ مجھے سکھائیے, میں آپ سے سیکھتا ہوں, اور ہمیں سکھانے والا خدا کا روح ہے. ہاللیلویا. کتنے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ جے مسیح کی, جے مسیح کی. رات کو اٹھ کر کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ جے مسیح کی, جے مسیح کی. بڑی خوبصورت بات. اب جو لوگ یہ راتوں کو اٹھ کر دعا کرتے ہیں, شکر گزاری کرتے ہیں خدا کی, وہ تو پاس ہے. پھر ان کی یہ شکر گزاری ان کی نسل میں نظر آتی ہے. لیکن جو نہیں کرتے ان کی شکر گزاری بھی ان کی نسل میں سے ہی نظر آتی ہے. اس دنیا میں یاد رکھیے گا دو ہی قسم کے, دو ہی نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں, دو ہی مشنیں ہیں. آج تو خیر پاکستان میں 1000 سے زیادہ مشنیں ہیں اور پوری دنیا میں 6000 سے زیادہ مشنیں ہیں. لیکن صرف بائبل مقدس دو نسلوں کے بارے میں, دو مشنوں کے بارے میں بتاتی ہے. ایک شیطان کی نسل, شیطان کی مشن, اور ایک خدا کی نسل اور خدا کی مشن. آپ پیدائش 3 باب جب پڑھتے ہیں, ان کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ ان کا پتہ ان کے کاموں سے چلتا ہے. خدا کے روح کی جو پہچان ہے وہ زبان نہیں ہے جو آپ بول کے کہتے ہیں کہ یہ غیر زبان ہے. خدا کے روح کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان. درخت اپنے پھلوں سے اور انسان اپنے کاموں سے جانا جاتا ہے. جو انسان راتوں کو اٹھ کر خدا کی شکر گزاری کرتا ہے وہ زندہ خدا کا سورما ہے. ورنہ راتوں کو اٹھ کر شیطان آتا ہے اور کھیت کے اندر کڑوے دانے بیج کر چلا جاتا ہے. رات کو اٹھ کر کیا کرنی ہے جی؟ شکر گزاری. آدھی راتوں کو اٹھ کر, آدھی رات, لفظ ادھی رات ہم پنجابی میں بھی دیکھتے ہیں جسے مڈ نائٹ کہا جاتا ہے انگلش میں. یہ ٹائم کیا ہوتا ہے ادھی رات کا؟ 3-4 بجے. اور کوئی 12 بجے. اچھا 3-4 بجے. خالہ کے لیے ایک بار زوردار تعلیم. مڈ نائٹ جو ہمیشہ یاد رکھیے گا, آدھی رات جو ہوتی ہے وہ 12 بجے شروع ہوتی ہے. 12 بجے کے بعد کی یہ بات ہو رہی ہے. عزیزو یاد رکھیے گا ہمارے آپ کے خداوند یسوع المسیح جو ہمارے نجات دہندہ تھے وہ بھی راتوں کو اٹھ کر بیابانوں میں, جنگلوں میں, پہاڑوں میں جا کر دعا کرتے تھے تاکہ صبح میں ان کے سائے سے مردے زندہ ہو جائے, صبح میں ان کے کہہ دینے سے ہی سب کچھ ہو جائے, صبح میں وہ صرف کہہ ہی دے تو ہو جائے. جب تک آپ کی رات کی شکر گزاری نہیں ہے, آپ کی نوکریاں, آپ کے پیسے, آپ کا جو بھی کاروبار ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. یہ زندہ خدا کے سورما کو دیکھتے ہیں, دنیا کا سب سے بزی انسان ہوگا یہ زندہ خدا کا سورما جو کہتا ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کر تیری شکر گزاری کروں گا. کس لیے؟ تیرے صداقت کے حکموں کی وجہ سے. کن کی وجہ سے؟ صداقت کے حکموں کی وجہ سے, یعنی کہ جو تو نے شریعت مجھے دی. اچھا اکثر لفظ شریعت جب آتا ہے تو ہمارے کئی ناقدین, پاسبان وہ یہ سمجھتے پتہ نہیں ہے کوئی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے یا اسرائیلیوں کی بات ہو رہی ہے. شریعت نہ یہودیوں کی ہے, نہ اسرائیلیوں کی ہے, نہ سایادی ہے, نہ مسیحوں کی ہے, نہ مسلمانوں کی ہے, نہ ہندوؤں کی ہے. شریعت زندہ خدا کی ہے. زندہ خدا کی شریعت خدا کی راست بازی کو ظاہر کرتی ہے, اور زندہ خدا کی شریعت ہماری ناراستگی کو ظاہر کرتی ہے. اور یہ اس لیے دی گئی تاکہ آپ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ چوری نہ کر, اور پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ جب تو خدا کے حکموں کو مانے گا تو زمین پر بھی تیری عزت ہوگی اور آسمان پر بھی تیری کیا ہوگی؟ عزت ہوگی. جے ہی چوری کریے تھے, زمین تے بھی لانتان اور خدا بھی اوپر سے لانتانی کرتا ہے. تو یہ جو خدا نے ہمیں یہ حکم دیے, یہ اس لیے دیے تاکہ ان حکموں کی پاداش میں آتے ہوئے ہم راتوں کو اٹھ کر خدا کی شکر گزاری کریں کہ خداوند تجھ پہ میں ایمان تو لے آیا, لیکن اب ایمان یافتہ اس نجات یافتہ زندگی کو گزارنے کے لیے تو نے مجھے اپنی احکام خداوندی دی. لفظ جب شریعت آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا اصل متن جب آپ دیکھتے ہیں عبرانی زبان میں تو یہ لفظ ہے تورا.
तोरा का मतलब भी हम शरीयत ही कह देते हैं। तोरा लफ्ज का मतलब है एडवाइस करना, एडवाइजरी, काउंसलर, नसीहत करने वाला। मिसाल के तौर पे मैं इस बच्चे का बाप हूं, मैं खुदा हूं, ये मेरी कलीसिया मेरा बेटा है, तो मैं इसे कुछ बताऊंगा नहीं कि बेटा ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, बताऊंगा ना। तो यही खुदा का और आपका हमारा आपस में रिलेशनशिप है। खुदा ने पहले कहा कि मुझ पर ईमान लाओ, उसके बाद कहा कि निजात याफ्ता रहने के लिए इस तरह आप स्टेप अप करो, अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारो। इस तरह गुजारोगे तो अनोखी कौम होंगे, इस तरह गुजारोगे तो शाही कायरों का फिरका होंगे, इस तरह गुजारोगे तो तुम एक बरगजीदा नस्ल होंगे। वरना मुझ पर ईमान लाकर मेरा ही कहना ना मानो तो निजात याफ्ता हो सकते हैं हम। लेकिन यस्सु नाम पर हम ईमान ले आए, यहोवा खुदा पर हम ईमान तो ले आए, लेकिन उसके कहे हुए पर अमल नहीं करते, तो क्या हम निजात याफ्ता रह सकते? कई नाकदीन हमारे, कई पासबान कहते हैं कि देखो जी वो हमारी शिफायत करता है। वो शिफायत है थोड़ी करता है कि मैं तेन के ज़िना ना कर, तू करे तो फिर मैं तेरी शिफायत करता रहा। हम इस तबाह को नहीं समझते, ना ऊपर नीचे से पढ़ते एक आयत को अपने लिए ले लेते हैं। अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाब और सलामती का शहजादा। अजीब मीन्स वंडरफुल, मुशीर मीन्स काउंसलर। खुदा भी खुद कह रहा है कि जो कुंवारी से पैदा होगा वो काउंसलर होगा, यानी कि वो सिखाने वाला होगा, वो नसीहत करने वाला होगा। तोरा लफ्ज इसे कहते हैं, शरीयत, कानून, इनसे बालातर है ये लफ्ज, बहुत ऊपर है। तो उसके बाद आप देखते हैं खुदा ने हमें जिंदगी गुजारने के लिए हुक्म दिए, और उन हुक्मों की पादाश में आकर उन हुक्मों पर अमल करते हुए हम रातों को उठकर उसकी क्या करते हैं? शुक्र गुजारी करते हैं। ईमान से मुझे बताइएगा कितने लोग हैं जो रातों को उठकर खुदा के हुक्मों की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने हमें ये हुक्म दिए, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि ये हुक्म हमें दुनिया से निराले बनाते हैं, अनोखे बनाते हैं। शुक्रगुजारी क्या है? किसी के एहसानमंद हो जाना, किसी के एहसानमंद हो जाना। हमारा और आपका मुनजी जिंदा खुदाम यीशु मसीह आपके और मेरे लिए ऐसी ऐसी अजियतें उठा के गया, हालांकि उसे जरूरत न थी। खुदा ने आदम को बनाया, आदम के बाद बनाने के बाद हवा को बनाया, और आदम और हवा को बनाने के बाद आप देखते पूरी कायनात को बनाया, लेकिन उसको कुर्बान करने के लिए अपना बेटा पेश किया। एक छोटा सा और सवाल पूछूंगा, जब खुदा ने अपना बेटा पेश किया, एक तरफ वो असली बेटा है जो एवरलास्टिंग है, जो इब्तिदा है, इंतहा है, शुरू और अंजाम है, अव्वल और आखिर है, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, क्योंकि खुद खुदावंद खुदा है। और दूसरी तरफ हम जो गुनाह से लिथड़े हुए एक लोथड़े के बने हुए इंसान, खुदा किससे ज्यादा मोहब्बत करता है? अपने अजली बेटे से या हम नाफरमान बेटों बेटियों से? अपनी बेटे से। और कोई? हमसे। हमसे कैसे? वेरी गुड, जबरदस्त। अजीजों याद रखिएगा, अपने बेटे को तो इतना प्यार करता है, समझो वो उसी की जात का नक्श है, उसी की जात का वो परतौ है। वो खुद अपने आप को पेश करता है, लेकिन वो देखता है कि एक मट्टी से बनाए हुए लोथड़े को मैं देखता हूँ, एक मट्टी से बनाए हुए मुजस्समे को देखता हूँ, इसमें अपनी रूह फूंकता हूँ, और उसे पता है आगे जाके नाफरमानी करेगा, उसे पता है आगे जाके जो मैंने इसे अहकामे खुदाबंदी दी, हुक्म दिए जिंदगी गुजारने के लिए, उन्हीं को तोड़ेगा, मेरी नाफरमानी करेगा। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को कुर्बान करता है, अपने बेटे को अपने से दूर करके इस गुनाह के बने हुए इंसान को बचाता है। ये वो बेटा है जो तख्त छोड़ के हमारे पास आया और कहता है अपने पांव भी लाओ, मैं तुम्हारे पांव भी धो दूंगा। यूहन्ना 14 बाब पढ़ते तो वो कहता है जो मुझसे मोहब्बत रखता है मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी उसके हुक्मों पर अमल करने से होती है। सुनिएगा, जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी उसके सदाकत के सच्चाई के हुक्मों पर अमल करने से होती है, और कोई तरीका नहीं है। पुराने जमाने में हमारे अक्सर बड़े जो थे वो कहते थे देग चढ़ा लेते हैं शुक्रगुजारी की, खाना खिला देते, शुक्रगुजारी की इबादत है जी। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है हर हाल में खुश रहो। मैं कहता हूं हर हाल में शुक्रगुजारी करो। मैं आपको अपनी माँ की गवाही देता हूं, वो बीच में कई शदीद बीमार रही,
हॉस्पिटल भी दाखिल हुई, लेकिन मैंने तो उनके मुंह से यही सुना था, यीशु तेरा शुक्र होए, खुदावन तेरा शुक्र होए, खुदावन तेरा शुक्र होए, तो यीशु तेरा शुक्र होए। हम बीमारी में ये काम करते हैं कि नहीं? बहुत मुश्किल है, करते हैं। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, ये शुक्र गुजारी जो है खुदा के हुक्मों पर अमल करने से है। उसने कहा कि हर वक्त मेरी शुक्र गुजारी करो, तो जिंदा खुदा के हम चहीते होते हुए उसकी शुक्र गुजारी करते हैं। उसके हुक्मों को मानने से ही उसकी शुक्र गुजारी होती है। मैं मिसाल देता हूं एक, आदम और हवा को जानते हैं आप, वो जिंदा खुदा के सूरमा थे। क्या वो बाप पर ईमान ना रखते थे? खुदा पर ईमान ना रखते थे? रखते थे, लेकिन फिर भी बाग एदन से बाहर हो गए। क्यों? उन्हें नाफरमानी की। और टॉपिक के हिसाब से नाफरमानी की, जबरदस्त। खुदा के ही हुक्म को नहीं माना, खुदा के हुक्म को नहीं माना, तो जिस खुदा ने बनाया उसी ने उठा के बाहर फेंक दिया। ऊपर आसमान पर देखे, इससे पहले जो गुनाह हुआ आसमान में, तो लूसीफर फरिश्ते ने क्या किया? वो तो रखता था खुदा पर ईमान के हाँ ये खुदा है, लेकिन दिल में सोच लिया, कहां पर? दिल में सोच लिया कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊपर लगाऊंगा, मैं आतिशी रथों को अपने नीचे रखूंगा, मैं खुदा के सितारों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं फरिश्तों से भी ऊपर होऊंगा, मैं खुदा ताला की मालिक होऊंगा। उसके हुक्म को नहीं माना तो क्या हुआ? सल्तनत से भी बाहर, इधर जमीन पर बाग एदन से भी बाहर। काइन और हाबल को देखते हैं, खुदा पर ईमान रखते थे, कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हुक्म अदूली हुई तो क्या हुआ? ऐसी मौत मरा के जब इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ते तो आप हैरान हो जाएंगे। जिसने कत्ल किया उसको भी खुदा ने फारिग कर दिया। कौन बनी इसराइल को देखते हैं आप, कैसे खुदा ने 2000 साल तक इन्हें तितर बितर रखा, और उससे पहले भी खुदा ने इनको बहुत मारा। किस वजह से? क्या वो यहोवा खुदा पर ईमान न रखते थे? क्या वो बेटे पर ईमान न रखते थे? क्या वो रूह कुदुस पर ईमान न रखते थे? रखते थे, लेकिन क्या उसके हुक्म को नहीं थे मानते, तो खुदा ने उन्हें भी छोड़ दिया। आज आप और मैं यहां पर हैं, मुझे बोर्ड दीजिए, बोर्ड। हमारे पास आखिरी बात आपसे करने को हूं, सोचिएगा, सवाल भी हो तो इबादत के आखिर में जरूर पूछिएगा। लिखा है, तेरी सदाकत के अहकाम के लिए मैं आधी रात को तेरी शुक्र। उसके बाद जब आप देखते हैं कि कड़वे बीज जो बोए जाते हैं, वो किधर से बोए जाते हैं? शैतान के वसीला से। जब आप मत्ती की इंजील पढ़ते हैं, उसका 13वां बाब और उसकी 24वीं से 30वीं आयत, उसके बाद जब आप देखते हैं कि तारीकी के फर्जंद नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं, लूका 16 बाब और उसकी 8 आयत। उसके बाद जब आप देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 1 से 5 आयत कि नूर तारीकी में चमका, लेकिन तारीकी ने उसे कबूल नहीं किया। उसके बाद जब आप देखते हैं लूका 20 बाब उसकी 47 से 53 आयत, तो वहां पर भी हमें ये अंधेरे का ही मिलता है, तारीकी का मिलता है। वो कि तारीकी गुनाह नहीं है, लेकिन खुदा ने तशबीहन उसको एक गुनाह की शक्ल दी है। नूर अपने आप को कहा, तारीकी खुदा को कहा। अब तारीकी में होता क्या है? जिंदा खुदा तो कहता है कि मैं जाता हूं पहाड़ों में, बियाबानों में, जंगलात में तुम्हारे लिए क्या करने? दुआ करने। उसके बाद जब आप देखते हैं कि मुकद्दसीन को, वो भी रातों को दुआ करते हैं। उसके बाद मैं और आप आ जाते हैं। हम लोग रातों को कितना टाइम देते हैं खुदा को? नौकरी करते हैं 8 घंटे की, नौकरी करते हैं 12 घंटे की, माँ बाप को टाइम देते हैं, बीवी को टाइम देते हैं, बच्चे पालते हैं, घर को पालते हैं। खुदा को कितना टाइम देते हैं? खुदा को टाइम देने का मतलब 2 ही है, दुआ करना और कलामे हक को पढ़ना। और जो दुआ करके कलामे हक को पढ़ता है वही उसी पर अमल करता है। आधी रात को दुश्मन आता है और वो अपना काम करके चला जाता है। मैं एक आज सिर्फ आपके सामने नए आयत में से पढ़ूंगा कि आधी रात को आखिरकार होता क्या है। मेरे साथ देख सकते हैं मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 22वां बाब उसकी 47 से 53 आयत जब आप देखते हैं तो वहां पे सारा सुनहरी हमें नजर आता है कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह को रात की तारीकी में पकड़वाया जाता है। लेकिन मैं आपके सामने 53वीं आयत में पढ़ता हूं, यहाँ पर लिखा है, जब वो हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था, जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, लेकिन ये तुम्हारी खड़ी है, ये तुम्हारी खड़ी है और तारीकी का इख्तियार है।
तारीकी का जब इख्तियार होता है तो यस्सु मसीह कैद में आ जाते हैं, क्योंकि उसका ये वक्त था। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, तारीकी के अंदर ही जिंदा खुदा आपको हमें कहता है कि रातों को उठकर अपनी औलादों के लिए दुआ करो, रातों को उठकर अपनी नस्लों के लिए दुआ करो, रातों को उठकर अपने बीमारों के लिए दुआ करो, रातों को उठकर अपने मस्कीनों के लिए दुआ करो, अपने गरीबों के लिए दुआ करो, क्योंकि इसी तारीकी का इख्तियार बड़ा खतरनाक है। हमारे बहुतेरे नौजवान जो है वो रात की तारीकी को कुछ और काम कर रहे होते हैं, कोई कुछ और काम कर रहे होते हैं। जब इलाके में देखें तो रात के 2-2 बजे जुआ चल रहा होता है, नशा चल रहा होता है। आप और मैं रात की तारीकी को इनके लिए भी दुआ कर सकते हैं। रात की तारीकी में दुआ करना, उसके हुक्मों की पादाश में होकर उसके हुक्मों को मानकर ही यही जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी कहलाती है। और अजीजों, आखिर में मैं आपसे जो कहने वाला हूं उसको गौर से सुनिएगा। हम रात की तारीकी में जो आगे हमारे सेलिब्रेशन की ईदें आएंगी, रात की तारीकी में हम सेंटा क्लॉज को भी लेके घूमते हैं, तो क्या हम खुदा के हुक्म को मान रहे हैं? क्या हम उसके सदाकत के हुक्मों की शुक्रगुजारी कर रहे हैं? मुंह जिन्ना मर्जी कहते रहिए, लेकिन जो अमाल होते नहीं, तो याद रखिएगा वो आपको माफ नहीं करेगा। वो आपसे आदम की तरह पूछेगा, ओ भाई तुझे किसने कहा तू नंगा हो गया? तो वो ये भी पूछेगा, तुझे किसने कहा ये बाबे को लेके आ? क्या तुझे पता नहीं कि पोशीदा जगह पर उस चीज को नफ्स करना जो बुत परस्ती कहलाती है? क्या वो आपसे पूछेगा नहीं कि आप हरे दरख्तों को लगाते हैं, कलाम नहीं पढ़ा आपने? क्या वो आपसे पूछेगा नहीं कि मैंने आदम को नहीं छोड़ा, तो मैं तुझसे भी पूछता हूं कि ये जो तूने लगाया है ये किस लिए लगाया है, इसकी वजह क्या है, कलाम में इसकी आयत क्या है, कलाम में खुदा क्या फरमाता है? तो हम कैसे रातों को उठकर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, कैसे उसके सदाकत के हुक्मों को मानकर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं? अजीजों, याद रखिएगा कि वो चीजें हैं जो हमें दबा देती हैं हमारी मसीहत के अंदर ही। आज 100 से ज्यादा बिदअती तालीम है, 100 से ज्यादा तफरीके ऐसी तालीम डाली गई है जिसका चर्चिस से कोई लेना देना नहीं, मसीह तालीमात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दूसरी कौमों को देखकर हम वही काम कर रहे हैं। तो क्या हम रातों को शुक्रगुजारी करेंगे उसकी, या किस मुंह से उसकी शुक्रगुजारी करेंगे? हम रोजे रखते हैं, मैं आपके सामने ये बोर्ड रख रहा हूं, इस बोर्ड को गौर से देखिए। ये बोर्ड को लाने का मकसद ये है कि तस्वीर जो सामने आती है ना तो फिर ज्यादा अच्छा छप जाता है ज़हन में। इस बोर्ड को देखिए गौर से, इस बोर्ड को देखिए। जब इस बोर्ड को देखते हैं तो इस पे पहले लिखा है बुद्ध। हम जब रोजे रखते हैं, आपका खुदा आपसे नहीं पूछेगा कि भाई तू सदाकत है हुक्माली मेरी शुक्रगुजारी करना है, पहला मैनू आद दस तेनू किन्ने के बुद्ध नू रोजा रख, फिर पूछेगा तेनू किन्ने के मथे ते राख ला या खाक ला, फिर अगला पूछेगा इतवार दी छुट्टी डंडी मार, वो कहेगा मैं भी तो रखे ने, मैं इतवार दी डंडी मारी सी। ये कौन करवाता है आपसे? कौन करवाता है आपसे? इब्लीस, वो नजर नहीं आता, बंदा बताए कौन है? कौन करवाता है आपसे? क्या ये खुदा के हुक्म में लिखा हुआ है कि इस तरह करो? क्या आप खुदा के हुक्मों को तोड़कर उसकी सदाकत के हुक्मों की शुक्रगुजारी कर सकते हैं? आगे देखते हैं कि रोजे रखने के बाद उसूली चाड़ देने आई। आपने कभी अपने पासबानों से पूछा नहीं जिनको इतनी मोटी मोटी रकम देते, आ लो जी, कभी पूछा नहीं आपने आ रोजे रख के उसूली चाड़ छड़े थे बचा? कौन से कलाम में लिखा है? रोजे रखने के बाद उन्हें की कीता सी? रोजे रखने के बाद खिदमत की थी। रोजे रखने के बाद उसने खिदमत की थी। तो रोजे रखने के बाद हम लोग क्या करते? अरे उसूली चाड़ देने। क्या इब्तदाई कलीसिया ये करती थी? क्या खुदा की कोई पेशेंट कोई है इस तरह? क्या फरिश्ते ने आके मुकद्दसा मां मरियम को कहा हुआ अपने मुंडे की तो ऐसा करवाना है? क्या उन्होंने ये किया? ये कौन करवाते हैं आपसे? सोचिएगा। 40 खुदा यीशु मसीह ने कितने रोजे रखे? 40 तो कभी भी ना गिरा दे। एक ही रोजा रखा था, वो 40 दिनों का था। कितने दिनों का है? एक ही रोजा रखा था और वो 40 दिनों का था। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप इन सारी चीजों को देखेंगे ना और बाइबल में नहीं देखेंगे तो इसका मतलब है ये वहां से आए हैं जिनको आप बुत परस्त कहते हैं, जिनको आप लोग क्या कहते हैं? बुत परस्त है, बुत परस्त है। मिशन केड़ी है? बुत परस्त है।
कहा उसी का मान रहे हैं, ये मुनाफिकत है कि नहीं? कहा उसी का मान रहे हैं, उन्होंने तेरे त्योहार उन्हें बनाना है, लेकिन है वो बुत परस्त, उन्होंने तो एक मिशन है, तो तुसा देते हजार ना भी बोतियां बनाई हुई हैं, उनकी तो एक ही है, और तुमने तो 1000 से भी ज्यादा बनाए, वो तो खुली किताब है। तुम अपनी भेड़ों को ऐसे मार रहे हो कि खुदा आपसे बदला लेगा। जिक्रिया की किताब पढ़े, जो इस तरह की तालीम देते हैं, उसकी नस्लों के साथ क्या होगा, उनकी हड्डियों के साथ खुदा क्या करेगा। उसके बाद जब आप देखते हैं आखिरी में, ये बड़ी खूबसूरत चीज है, मत्ती की इंजील पढ़ते हैं 5वां बाब, तो रोजे और दुआ के लिखे, रोजे के लिए लिखा है कि जब तू रोजा रखे तो कैसे रखे, पोशीदगी में। कैसे रखे, पोशीदगी में। कैसे रखे, पोशीदगी क्या होती है? पोशीदगी का मतलब किसी को पता ना चले, और कोई छुपा हुआ, और कोई अलहदगी, और कोई। बिब्लिकल रेफरेंस आपको देता हूं, मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं ये भेद तो बड़ा है, ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं कलीसिया और उसके यीशु के बारे में बात करता हूं, जैसे बीवी ते बंदा, मर्द और औरत, बीवी और उसके शौहर का ताल्लुक होता है ना, तो कोई भी नहीं आता तीजा चौथा। इसी तरह वो कहता है कि इसको भी तू पोशीदगी में रख। इतनी पोशीदगी होनी चाहिए, कितनी पोशीदगी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पोशीदगी होनी चाहिए। लेकिन हम तो अल एलानिया पूरी दुनिया को बताते हैं, आगे ये चाली। क्या आप सदाकत के हुक्मों की शुक्रगुजारी कर रहे हैं? क्या आप अपने सदाकत के हुक्मों की शुक्रगुजारी कर रहे हैं? जाइएगा, मैं आपके पासवान की तो बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है उनका क्या मकसद है। आप अपने आप से पूछिएगा, मैं क्या करता रहा हूं? क्या मैंने कभी कलाम को पढ़ा? पौलुस रसूल इतना जिंदा खुदा का सूरमा, पौलुस रसूल जैसा है कोई आज? कोई भी नहीं है, ना कोई आगे होगा। पौलुस रसूल जब अंताकिया में कलाम सुनाते हैं तो माल की किताब में लिखा, लोग घरों में जाते थे, देखते थे कलाम को, क्या बंदा सही कहता पे है, झूठ बोलता पे है। आप लोगों ने कभी अपने पासवानों का सुन के कभी गौर किया घर पे, अब बंदा सही पे कहता है या झूठ पे बोलता है? बस एडी बड़ी मिनिस्ट्री है, एडे साला तो है, तबाही है, तबाही, यही है सब कुछ। इंसानों को बाप बनाया हुआ है अपना, इंसानों को खुदा बनाया हुआ है अपना। पूछने के लिए हमारी जीभ जो है वो पता नहीं लड़खड़ा जाती है, तो लड़न लग गया सानू वेख्या करो, मैनू लड़न लग गया कभी वेख्या करो, पर मैं अपनी जीभ दूजे काम में भी बड़ी चलाना। ये कलाम किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जो भी हाथ में लेके घूमता फिरे। ये कलाम का बदला आपकी नस्लों से लिया जाएगा, आपके खानदानों से लिया जाएगा, आपके घर वालों से लिया जाएगा। याद रखिएगा, बीमारी, लाचारी, गरीबी, गुर्बत, परेशानी, मुसीबत आती कब है? दो ही हरकतें हैं, या तो आप खुदा के कलाम के साथ चल रहे, गुनाहगार हो तो आई है, सॉरी रास्तबाज हो तो आई है अय्यूब की तरह, या आप निहायत गुनहगार हो मुंह से, मत्ती 7 बाब में मुंह से तो खुदावंद खुदावंद कहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है, या तो फिर इस तरह लानत आप पर आई है। कभी सोचा है आपने कि हम क्या करते फिर रहे? क्या सदाकत के हुक्मों की हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं? आदम को नहीं छोड़ा, लूसीफर को नहीं छोड़ा, कैन को नहीं छोड़ा, कौम बनी इस्राइल को नहीं छोड़ा, ते तुसी मैं की लगने वाले, आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। और इस तरह का कलाम आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। ये कलाम आपको मिलेगा आपके हाथों के अंदर, आपको घरों के अंदर। इसके अंदर रोजा रखने की तमीज है, इसके अंदर रोजे की टाइमिंग की मशीन है। बैठ जाए, रोजे की टाइमिंग की इसके अंदर तमीज है, इसमें हर चीज की तमीज है। लेकिन हम क्यों इंसानों पर भरोसा करते हैं? याद रखिएगा, मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, अगर मैं इंसानों को खुश करूं, आदमियों को खुश करूं, तो मैं खुदा का बंदा नहीं। क्यों आदमियों को खुश करते हैं? अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद के सदाकत के हुक्मों की शुक्रगुजारी उसके सच्चे दिल से करें, ना कि किसी इंसान, ना कि किसी फिलोसोफर, ना कि किसी स्कॉलर, ना कि किसी पासवान के कहने पर करें, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का जिम्मेदार है, और आप और आपकी नस्लें अपनी जिंदगी की जिम्मेदार है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। आसमानी खुदा, मैं तेरे नाम की तमजीद करता हूँ, तेरे नाम की शुक्र